Everyone, in this part we will discuss about the laws of chemical combination, and these laws explain how the elements combine to form compounds, what are the different properties, and also how these laws govern the chemical changes, means how the changes occur. Okay, so there are four laws of chemical combination, out of which the two you have discussed in high school in class 9. What these two are? Law of conservation of mass and law of definite proportion or constant composition. And another two law that we are going to discuss in this part is law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. So these four law govern the law of or govern the combination of elements or govern the chemical changes. So let's have a look to the first law, that is your law of conservation of mass, and this law was established by a French chemist Lavoisier. Okay, remember the name also. What is the statement? So in a chemical reaction, the initial weight of reacting substance is equal to the final weight of the product. So does the mass changes during a chemical reaction? क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करते हैं उनका मास चेंज होता है? द आंसर इज अ बिग नो. हाउ इट्स a big no? Let's have a look. So how Lavoisier stated this law? Look, he found that the total weight of the system is not changed in a chemical reaction. So if there is a chemical reaction, the total weight, or we can say total mass, is not changing. Means suppose here mercury and oxygen are reacting with each other to form mercury oxide. So the thing is, जितना मर्क्यूरी और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं उतना ही मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म होगा. सपोज रफली बोलते हैं, लेट सपोज 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ 16 ग्राम ऑफ व्हाट मर्क्यूरी, देन डेफिनेटली जो मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म होगा वो 28 ग्राम ही होगा. ये रफली हाँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल समझ लो. देन यहाँ पे देखो, सपोज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न टू प्रेजेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन ध्यान से देखो, हियर 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विथ 2 एटम ऑफ और 1 molecule of oxygen to form 2 molecule of what? Magnesium oxide. So here let the mass of the magnesium is 48.6, because इसका एटॉमिक मास कितना है 24.3. ऑक्सीजन है मास 16, तो 1 मॉलिक्यूल है तो 32 ग्राम होगा. सो व्हेन 48.6 gram of magnesium combined with 32 gram of oxygen, it will form how much? दोनों को ऐड करो, होगा क्या 80.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो देखो, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है दैट दिस टू आर व्हाट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द law of conservation of mass, we can state that the mass of the reactant is equal to the mass of the product produced in a chemical change. So what does it means? The mass does not changes in any chemical change. Let's have a look on few more examples. Here in this equation,
here देखो mercury oxide, how much? 2 molecule of mercury oxide with mass 433.2 gram is decomposed to 2 atom of mercury and 1 molecule of oxygen, and mercury का मास कितना होगा 401.2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32.0 ग्राम. सो अब ये दोनों को ऐड करके देखो, व्हाट 401.2 प्लस 32 होगा कितना 2.334, 433.2 ग्राम. In the same way, sodium and chlorine combine to form sodium chloride. 46 gram of sodium combined with 70.9 gram of chlorine to form 116.9 gram of sodium chloride. So यहाँ भी तुम लोग टेस्ट कर सकते हो that mass is not changing. Now the law of conservation of mass can be demonstrated by the union of hydrogen and oxygen also. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन ले लो, ऐसा नहीं है कि एक दो कंपाउंड में ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो गलत होगा, नॉट लाइक दैट. दिस लॉ इज फॉर ए फैक्ट. ये कोई स्टेटमेंट जस्ट नहीं है, दिस इज अ फैक्ट्स. सो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. सो देखो 2 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen. What is the mass of 2 molecule of hydrogen? 4 gram, and oxygen is 32 gram. So जो वाटर फॉर्म होगा वो कितना होगा? डेफिनेटली 36 ग्राम वाटर ही होगा. क्लियर? So all these examples can be easily used to demonstrate or verify the law of conservation of mass. राइट. बाय नंबर भी देख लो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, वाटर में भी वही 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. व्हाई? देखो ये वर्ड को समझो. इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी मतलब जिसको हम डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इज इट? मतलब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स व्हाट? मास कंजर्व है तो उसको डेस्ट्रॉय कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है. वन मोर थिंग रिमेंबर, द प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट एच लैंडोल्ट. नाम याद रखो, एच लैंडोल्ट, और जर्मन केमिस्ट. हैंस मतलब फाइनली देखो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज. बहुत सारे फॉर्म में कर सकते हैं. सो देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन में मास गेन या लॉस नहीं होता जिसको हम डिटेक्ट कर पाए, मतलब आइडेंटिफाई कर पाए. सो सिंपल स्टेटमेंट इज द सेम वन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज. एक और एग्जांपल देख लो. इन केमिकल चेंजेस नो मैटर हाउ बिग द बैंग मास इज नेदर गेन नॉर लॉस्ट. देखो सपोज ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है, तो कितना भी ब्लास्टिंग या जो भी हो, जितना साउंड प्रोड्यूस हो, जितना गैस इवॉल्व हो, जो भी रिएक्टेंट का मास जितना था बाद में उतना ही होगा. देखो यहाँ पे इस बंदे को देखो, पहले भी 70 kg, बाद में भी 70 kg ही रहा. सो नो चेंज इन मास. नाउ कम टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन. दिस वाज गिवन बाय लुइस प्रोस्ट. लुक, कौन सा लॉ किसने एस्टेब्लिश किया था? ये याद रखो, ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट मेक्स डिफरेंट कंपाउंड? सो इन द प्रीवियस लॉ we saw how compounds are made, but here we will see how different compounds are made. So different samples
of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass. मीन्स कोई भी एक सिंगल कंपाउंड ले लो, उसमें जो जो भी एलिमेंट हैं उस कंपाउंड में वही दो एलिमेंट होंगे और उनका जो रेशियो होगा वो बाय मास एक फिक्स्ड रेशियो होगा, राइट. सो देखते हैं एग्जांपल. और अनदर स्टेटमेंट, a chemical compound contain the same element in exactly the same proportion or same ratio by mass regardless of the size of the sample or source of the compound. मतलब उस कंपाउंड को तुम कहीं से लाओ, कैसे भी बनाओ, कितना भी लाओ, जो कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट है वो होगा फिक्स्ड. सिंपलेस्ट एग्जांपल वाटर. वाटर के बिना तो हम कोई एग्जांपल नहीं ले सकते ना, सबसे बेसिक चीज़ हमारा यही है. तो वाटर देखो, इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 हाइड्रोजन. ओके, देयर आर, एक मिनट, देयर आर हाउ मच, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज देयर. सो तुम कहीं से भी एक वाटर मॉलिक्यूल लो, इंडिया से लो, चाइना से लो, पाकिस्तान से लो, यूएस से लो, यूके से लो, दुबई से, कहीं से भी लो, या फिर इंडिया का किसी गट मतलब नाला से लो, या फिर तुम्हारे टैप से लो, या फिर वाटर प्यूरीफायर से लो. एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन एटम होगा. इससे अलावा कुछ और नहीं दिखा जाएगा तुम्हें. वाटर में यही दोनों होंगे. कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसका देखो परसेंटेज अगर निकालें तो बाय मास 89% ऑक्सीजन एंड 11% हाइड्रोजन होगा. देखो इसका फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं. व्हाट, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, H2 प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिए हैं. तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 यूनिफाइड मास, एंड एक ऑक्सीजन का है 16 यूनिफाइड मास. यू नो दैट, राइट. सो जो वाटर फॉर्म होगा वो पक्का 80 यूनिफाइड मास होगा, 80 यूनिट ही होगा. मीन्स अगर बाय मास रेशियो निकालें तो इन अ वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय मास इज व्हाट, 2:16 इज हाउ मच, 1/8. मीन्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 1:8. ओके, सो ये होगा उसका प्रोपोर्शन. एवरी सैंपल ऑफ वाटर दोज प्रिपेयर्ड in the laboratory or obtained from the rain, river or water pump contain 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen by mass. Remember, by mass. Okay. Now, Berzelius experiment. Berzelius heated 10 gram of lead with various amount of sulfur. मतलब 10 ग्राम लीड लिए वो 10 ग्राम ही, और उसके साथ कभी 10 ग्राम, कभी 12, कभी 15 ग्राम क्या लिए, सल्फर. तो जो फॉर्म हुआ ना लीड सल्फेट, सॉरी लीड सल्फाइड जो फॉर्म होगा वो होगा कितना, 11.56 ग्राम. मतलब 10 ग्राम था हमारा क्या, लीड. तो 10 ग्राम लीड कैन कंबाइन विथ ओनली 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर. 10 ग्राम लीड जो है ना इससे ज़्यादा सल्फर के साथ कंबाइन ही नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन करेगा ना. सो दिस शो द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. राइट. नाउ कम टू law of multiple proportion.
This was proposed by or published by John Dalton. Now let's have a look. When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element which combine with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole number और सिंपल मल्टीपल रेशियो. सो ये स्टेटमेंट को समझने के लिए चाहिए हमें एक एग्जांपल लेंगे हम कार्बन एंड ऑक्सीजन का. सो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन कम स्टेबली मतलब दो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. व्हाट आर दे? वन इज कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रिमेंबर दिस टू, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन कार्बन मोनोक्साइड 12 पार्ट ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, मोनोक्साइड में क्या 12/16 है, एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 12/32. Now this law of multiple proportion states that what? The ratio of mass of oxygen, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ 1:2 रेशियो में कंबाइन होके एक में कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म करता है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. देखो यहाँ पे रेशियो मिल गया हमें, राइट. और वी कैन से in 12 gram of carbon 16 gram of oxygen can combine to form one compound and 32 gram of oxygen compound to form another compound. So देखो ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड में कार्बन के साथ, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ जो कंबाइन होकर दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ना, उन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर होगा, और वो है यहाँ पे कितना 1:2. अगर मोनोक्साइड टू डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो लें तो कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे कार्बन का तो वही 12 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1:2 हो रहा है कि नहीं. दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ऑल्सो वाटर और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को देखते हैं. वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या फॉर्मूला? H2O एंड H2O2. तो यहाँ पे देखो दोनों का ले लें तो H2O एंड H2O2. अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज वही 2 ग्राम, यहाँ पे भी 2 ग्राम. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक कंपाउंड और 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक और कंपाउंड. तो यहाँ पे भी वही रेशियो आ जाएगा 1:2 हाउ मच 2. देखो सो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 16:32, और सिंपली 1:2 ये है भी हो गया सिंपल होल नंबर. एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और ये है सबसे बेस्ट एग्जांपल. देखो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम 32 ग्राम, 28 16, 28 32, 28 80. सो अगर हम इसको सिंपल रेशियो में निकालें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, कितना आएगा ये? 16:32:16:32:80. ये क्या होगा रेशियो? 1:2:1:2:5. यही वो सिंपल रेशियो होगा कि नहीं? देखो सिंपल होल नंबर, इससे और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते. सो
this law is verified here. Now come to the law of reciprocal proportion, and this law was established by रिचर. अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. देखो बोर मत हो, ये पार्ट थोड़ा लेंदी है, हम चारों लॉ को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं. दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द proportion in which they combine with each other shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. देखो दो एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं कुछ कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है. तो ये जो कंबाइन करेंगे ना, ये भी एक सिंपल रेशियो होगा या फिर ये दोनों का एक मल्टीपल होगा, है ना. देखो सब ए और बी दो एलिमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. लेट क्या x:y रेशियो में, ठीक है. ये दोनों फिर अलग से कंबाइन करते हैं एक एलिमेंट सी के साथ एक और कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. तो इनका ये जो सी का दोनों के साथ जो रेशियो होगा ना, ये इसके साथ ये होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा. एग्जांपल देखने से अच्छे से समझ जाओगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है 3 एलिमेंट. सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन को, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ कंबाइन तो कर रहे हैं, ठीक है. एक दूसरे के साथ कंबाइन किए, कितना हो गया ये, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ये फॉर्म किया व्हाट, देखो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये दोनों कौन, कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म होके मीथेन, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक. तो देखो हमारा यहाँ पे कार्बन हो गया ए, ऑक्सीजन हो गया बी, हाइड्रोजन हो गया सी. अब ए और सी एक एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, बी और सी एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. तो इनका जो रेशियो होगा वो ए बी दोनों जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं उसके साथ ही होगा. कैसे देख लो, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो कितना है, कार्बन का है 12:2, हाइड्रोजन में है कितना 8:1. इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो हो जाएगा कितना ये 6:1. नाउ ये दोनों को देखते हैं, कार्बन 12:32 मीन्स 4 में कटेगा 3:8. सो ये भी रेशियो फिक्स्ड होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. आई होप तुम लोगों को ये सब समझ में आया होगा.